Hello friends, welcome to my YouTube channel. In today's video lecture, we will discuss about coordinate systems. In that, we will see first coordinate system that is Cartesian, or we can say rectangular coordinate system. And after that, we will solve some numericals based on it. So in many orthogonal coordinate systems are there, but we shall be concerned only with the three coordinate system that are commonly used. So these coordinate systems are: first is Cartesian coordinate system, second cylindrical coordinate system, and third spherical coordinate system. So in Cartesian or in rectangular coordinate system, there are three mutually perpendicular axes जिसे हम x, y and z बोलते हैं. The x and y axis are horizontal axis and this जो z होता है आपका उसे हम vertical axis बोलते हैं. So these three axes meet at a point which is called as origin. So depending upon the position of x and y, there are two types of systems. The first is right-handed system and the second is left-handed system. So in figure A, we can see the right-handed system, and in figure B, we can see the left-handed system. जो आपका right-handed system होता है वहाँ पे आपका जो position of x and y z है तो ये आपका right-handed move होता है, यानी this is x, and if we move towards the right hand side, then the position of this y and z becomes like this. और in left hand side system जो आपका position of x है वहाँ से लेकर हम यहाँ पे उससे left side में move करेंगे तो यहाँ पे आपका y आएगा और यहाँ पे z आएगा. So in left handed system यहाँ पे आपका डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा. और सिंपली जो x होता है वहाँ से लेकर हम स्टार्ट करेंगे उसको, और जो आपके रिमेनिंग एक्सिस है ये आपके राइट हैंड साइड में प्लेस होंगे. एंड फॉर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम जो आपके x के साथ स्टार्ट हो जाएगा फिर से, और जो रिमेनिंग y एंड z उसके एक्सिस है वो आपके लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होंगे. ठीक है. सो द राइट हैंडेड सिस्टम जो होता है ये वाला ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. सो हियर दी suppose we have to define point P in the Cartesian coordinate system. यहाँ पे हमारा Cartesian coordinate system exist है जिसमें तीन एक्सिस होते हैं. पहला है x, दूसरा है y एंड तीसरा है z. और यहाँ पे आपको एक पॉइंट P डिफाइन करना है. सो दिस पॉइंट इज डिफाइंड बाय स्पेसिफाइंग थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम like x, y, z, and the position of point P in the right-handed system we can see in this figure. So similarly, this point P can also be defined by considering the intersection of three planes. So in this system, x and y axis are horizontal axis, and the while the z is the vertical axis. So consider the plane perpendicular to the z axis. So since here z is the vertical axis, so the plane perpendicular to this axis is a horizontal plane. This plane here we can see in this figure. Okay. So x and y axis are horizontal axis. This is x and this is y. These are nothing but horizontal axis. So the plane containing x and y is also horizontal plane. So we will denote this plane as a x and y plane. The xy plane and the plane perpendicular to the z axis are horizontal plane. So that means these two planes are parallel to each other. That means this is your z plane and this is x and y plane. ये दोनों भी plane आप यहाँ पे देख सकते हो कि they are parallel to each other. At any point the z coordinates on this plane are constant. So the plane perpendicular to the z axis is also called as this constant plane. So similarly the planes perpendicular to the xy axis are also called as x constant plane, और जो दूसरा होता है आपका ये होता है दिस इज y constant plane. यहाँ पे जो प्लेन होता है आपका विच इज परपेंडिकुलर टू दिस x, एंड ये आपका जो प्लेन है ये परपेंडिकुलर है y के लिए. सो दैट्स वाई जो x एंड y होता है इसे हम कांस्टेंट प्लेन बोलेंगे. ठीक है. सो दीज टू प्लेन्स दैट इज x इज इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन and y is equal to this constant plane is a horizontal plane. And so the intersection of this plane with the vertical line formed by x is equal to constant plane and y is equal to constant plane is a point.
जहाँ पे आपको P डिफाइन करना है. सो दिस इज पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स x, y, z एंड द पॉइंट P इज ऑब्टेन्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ दीज 3 प्लेन. तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देखते हैं. तो इसमें हम x, y, z हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, क्योंकि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है यहाँ पे कंसिडर किया है हमने, दैट इज नथिंग बट योर कार्टेशियन और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. और यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिया है P, जिसे आपको यहाँ पे लोकेट करना है, उसका पोजीशन आपको ड्रॉ करना है. तो पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू x, y, z के साथ उसे कंसिडर करते हैं. तो अगर हम x कंसिडर करेंगे तो ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन हम उसे ड्रॉ करेंगे. y होगा तो y को हॉरिजॉन्टल हम ड्रॉ करेंगे. एंड इफ इट इज z देन आपको इसका पॉइंट ऑफ जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ से एक परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाएगा जो आपका P पॉइंट रहेगा, हैविंग कोऑर्डिनेट्स विथ रिस्पेक्ट टू x, y, z. यहाँ पे आपको मिलेंगे x, y एंड z. ओके, तो इन दिस वे आप यहाँ पे पोजीशन फाइंड आउट करते हो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम फॉर द P पॉइंट. ठीक है, सो लेट अस सी हियर वन समरी टेबल जहाँ पे आपका पॉइंट P और उसका यूनिट वेक्टर्स, देन रिलेशन बिटवीन यूनिट वेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट सिस्टम और डिफरेंशियल लेंथ, डिफरेंशियल सरफेस एंड डिफरेंशियल वॉल्यूम कितना होता है फॉर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए यहाँ पे हम देखेंगे. तो अगर आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और वी कैन से द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट P को डिफाइन करना है तो आप उसे इन टर्म्स ऑफ x, y एंड z में एक्सप्रेस करोगे. सेकेंड, इफ यू वांट टू कैलकुलेट हियर द यूनिट वेक्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू ax, ay एंड az, then it can be denoted as ax bar, ay bar and az bar. The next point is a relation between unit vectors. तो यहाँ पे जो ax, ay होता है उसका क्रॉस प्रोडक्ट अगर लेंगे हम तो ये कभी भी आपका थर्ड यूनिट वेक्टर होता है, दैट इज az bar. Then second is ay and az. क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस ay and az अगेन जो आपका थर्ड रिमेनिंग एक्सिस है दैट इज ax bar. उसके बाद थर्ड वाला है az एंड ax. सो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस az बार एंड ax बार इज ay बार. अगर आप यहाँ पे डायरेक्शन इसका चेंज करेंगे, दैट इज इफ यू वांट टू टेक हियर द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ az एंड ay बार, तो यहाँ पे ये आएगा आपका ax बार. बट अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन उसका चेंज करेंगे, लाइक हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है ये पॉइंट फॉर क्रॉस प्रोडक्ट के लिए, तो अगर आप अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन जाओगे तो कभी भी आपका वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे. लेकिन आप डायरेक्शन आपका अगर रिवर्स होता है, चेंज होता है, तो आपका जो आंसर होता है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का वो थर्ड वेक्टर ही आएगा, बट आपका जो साइन होता है ये निगेटिव होता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पोजीशन वेक्टर्स टू पॉइंट P. सो हियर इफ यू वांट टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पॉइंट P विथ रिस्पेक्ट टू x, y एंड z, तो हम उसे डिफाइन करेंगे ax बार इंटू ax1 प्लस ay बार इंटू y1 प्लस az बार इंटू z1. सो हियर दिस ax बार, ay बार एंड az बार आर नथिंग बट यूनिट वेक्टर्स होंगे विथ रिस्पेक्ट टू x1, y1 एंड z1. इफ टू वेक्टर्स आर गिवन एज a बार एंड b बार, जो a बार होगा आपका उसके कोऑर्डिनेट्स प्रेजेंट रहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू दिस ax, ay एंड az. और जो b बार होता है आपका उसके भी कोऑर्डिनेट्स रहेंगे यहाँ पे, दैट इज bx, ax बार प्लस by, ay बार एंड bz, az बार. देन इफ यू वांट टू कैलकुलेट हियर द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a बार डॉट b बार, तो यहाँ पे आपको सिंपली a का a के साथ मल्टीप्लाई करना है. दैट इज हियर इफ वी हैव टू जस्ट मल्टीप्लाई द x पैरामीटर विद द सेकंड x, y का y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और z का z के साथ. और दूसरा हमें अगर उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो उसके लिए हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे जिसमें आपके a के वैल्यूज प्रेजेंट रहेंगे और b के वैल्यूज भी दिए रहेंगे, और ये डिटर्मिनेंट हमको सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज द डिफरेंशियल लेंथ. डिफरेंशियल लेंथ अगर हम कंसिडर करेंगे तो विथ रिस्पेक्ट टू x एंड y एंड z, तो ये आएगा आपका dx, dy एंड dz, बिकॉज हियर वी हैव टू कंसिडर द स्मॉल लेंथ विच इज नथिंग बट डिफरेंशियल लेंथ. If we consider again second parameter that is differential surfaces, so here dsx जो आएगा आपका with respect to x axis, तो ये रहेगा आपका dy एंड dz. dsy अगर करेंगे कंसिडर तो जो रिमेनिंग दो एक्सिस है ये आएंगे आपके dx एंड dz. एंड इफ यू कंसिडर दिस डिफरेंशियल सरफेस एरिया फॉर द with respect to the z axis,
then it is dx and dy. And last, if we consider the differential volume, then it is considered to be dx, dy and dz. ओके, तो ये जो टेबल रहेगा आपका, ये समरी टेबल है फॉर द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम और द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसका यूज करके आपके जो भी इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे उसे आपको सॉल्व करना है. ओके, सो लेट अस सॉल्व वन न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन इट. Locate the points A having coordinates 2, 3, 5 and B having coordinates 1, -2, 3 in right-handed Cartesian coordinate system, and find out first vector A bar, second vector B bar, and third vector from point A to point B. So in this example, write down first given data. Here 2 points are there, that is A and B, having coordinates 2, 3, 5 for A and 1, -2, 3 for point B. The next step is we have to just locate the position of these point A and B in Cartesian coordinate system. तो जो पहला पॉइंट है आपका that is A, इसे हम पहले रिप्रेजेंट करेंगे इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. यहाँ पे x वैल्यू आपको दिया है 2, y वैल्यू दिया है 3 एंड z वैल्यू दिया है 5. तो पहला जो है हमारा x वैल्यू, उसे हम ड्रॉ करेंगे. तो जो आपका यहाँ पे x है, यहाँ पे वैल्यू आपको 2 दिया है. जो y पैरामीटर है उसका वैल्यू आपको 3 दिया है, और जो z है यहाँ पे आपको उसका वैल्यू 5 दिया है. ठीक है, उसके बाद जो भी आपका x पॉइंट होता है उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहाँ पे जो y एक्सिस है उसको यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. और जो y होता है यहाँ पे, जिसका वैल्यू यहाँ पे 3 दिया है, उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम जो x वैल्यू होता है उसका पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. तो आप देख सकते हो कि x एक्सिस आपका यहाँ पे प्रेजेंट है, इसका पैरेलल हम सिमिलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. तो ये आएगा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ y. यानी जब भी आपको x को रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे y पैरेलल निकालेंगे, और y पैरामीटर डिनोट करने के लिए x का यहाँ पे वैल्यू, x का जो पैरेलल एक्सिस हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. ठीक है, और जो z है और उसका वैल्यू आपको दिया है दैट इज इक्वल टू 5. सो हियर जो भी आपका यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहाँ से हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, जो होगा आपका द वैल्यू ऑफ z लाइक दिस. ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाता है दैट इज नथिंग बट आवर इंटरसेक्शन पॉइंट, जिसे हम पॉइंट A बोलेंगे, हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2, 3, 5. सो इन दिस वे वी कैन लोकेट द पोजिशन ऑफ A बार. सिमिलर वे जो आपका B पॉइंट है उसे हम लोकेट करेंगे. तो यहाँ पे फिर से आपको वही प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करना है. x का वैल्यू यहाँ पे दिया है, इसे हम पहले लोकेट करेंगे दैट इज 1. देन सेकेंड y का वैल्यू भी आपको दिया है दैट इज -2. तो ये जो एक्सिस है फॉर पॉजिटिव y वैल्यू के लिए है, तो इसके निगेटिव वैल्यू ये यहाँ पे आ जाएंगे. यहाँ पे आपको यहाँ दिया है इसका वैल्यू -2. दिस इज आवर निगेटिव एक्सिस जिसपे आपको वैल्यू दिया है -2, और यहाँ पे एक वैल्यू दिया है आपको हैविंग वैल्यू 1 दिया है इसका. देन z दिया है, इसका वैल्यू आपको दिया है 3. सपोज दिस इज आवर z एक्सिस. ओके, तो आपने यहाँ पे 1, -2 एंड 3 पहले पॉइंट लोकेट किए हैं. उसके बाद आपको यहाँ पे पैरेलल ड्रॉ करना है. x पॉइंट हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है, तो उसके लिए हम जो y होता है, यहाँ पे जो y एक्सिस है इसका पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइक दिस. और जो y पोजीशन है यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए x का पैरेलल ड्रॉ करेंगे. तो ये -2 यहाँ पे है, x का पैरेलल ये आएगा आपका ऐसे एक्सिस. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 दिया है आपका z पॉइंट, तो उसका एक परपेंडिकुलर हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे. परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये आएगा आपका ये दिस पैरेलल एक्सिस इसको. सो दिस पॉइंट बिकम्स दिस. यहाँ पे आप लिख सकते हो उसे, या यहाँ पे भी आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं. ठीक है, प्रोसीजर इंपॉर्टेंट है. आपको x रिप्रेजेंट करने के लिए y को पैरेलल निकालना है, और y पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए x पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है. यहाँ पे x को पैरेलल लेना है. ठीक है, तो अगेन हियर वी विल गेट द पॉइंट P हैविंग कोऑर्डिनेट्स 1, -2, 3.
एंड ये होता है आपका पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2, 3, 5। ठीक है, तो यहाँ पे आपको निकालना है फर्स्ट वेक्टर ए बार। तो यहाँ पे आपका एक ओरिजिन है हैविंग कोऑर्डिनेट्स 0, 0, 0। तो जो आपका वेक्टर बनेगा वो 0 से लेके यानी ओरिजिन से लेके तो ए तक जाएगा। ये पॉइंट हमने ऑलरेडी यहाँ पे लोकेट किया है। सो दिस वेक्टर इज फ्रॉम 0 टू ए विच इज नथिंग बट ए बार। उसके बाद सेकेंड वेक्टर दिया है आपको वेक्टर बी बार। सो द डायरेक्शन ऑफ दिस बी बार वेक्टर इज फ्रॉम अगेन ओरिजिन टू पॉइंट बी। तो ये आपका डायरेक्शन यहाँ पे 0 टू बी बार जाएगा। डायरेक्शन आपको यहाँ पे चेंज नहीं करना है। जब भी आपको बोला है फ्रॉम पॉइंट वेक्टर ए बार, तो ये आएगा आपका ओरिजिन से लेके टूवर्ड्स द पॉइंट ए। अगेन वेक्टर बी बार, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स पॉइंट बी। ओके, एंड द थर्ड वेक्टर आपको दिया है वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। दैट मीन्स फ्रॉम ए टू फ्रॉम पॉइंट बी। तो डायरेक्शन आपका फ्रॉम ए टू बी ही होना चाहिए यहाँ पे। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो वेक्टर के डायरेक्शंस होते हैं यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर ये आप इसमें गलती करते हो तो पूरा जो आपका आगे का सम है कैलकुलेशन पूरा ही गलत हो जाएगा। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, हाउ टू गिव द डायरेक्शन। ओके, so here vector a bar is the vector which is drawn from origin to point A. So let us consider the unit vectors ax bar, ay bar and az bar with respect to x, y and z direction. तो ये आपका a bar है, उसे हमने रिप्रेजेंट किया है in terms of ax, ay, az with respect to x, y and z direction. ओके, तो यहाँ पे आपको ax, ay and az के वैल्यूज गिवन है, that is 2, 3, 5. So this is the value of ax, ay and az. यहाँ पे हम उसको सिंपली पुट करेंगे. So your a bar becomes 2ax bar plus 3ay bar plus 5az bar. This is our vector a bar. In similar way, vector b bar is the vector which is drawn from origin to point B. So this is again shown in this figure and it is expressed as b bar is equal to bx ax bar plus by ay bar plus bz az bar. So again here we know the coordinates of b bar 1, -2, 3. So this will become bx is equal to 1. The value of by is equal to minus of 2 and the value of bz is equal to 3. So this will become ax bar minus 2ay bar plus 3az bar. तो ये आएगा आपका b बार का वैल्यू. उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. दिस इज अवर पॉइंट ए एंड दिस इज अवर पॉइंट बी. सो द डायरेक्शन ऑफ दिस ए टू बी होना चाहिए यहाँ पे एंड दिस विल रिप्रेजेंट योर ए बी बार. ओके, सो हियर द ए बी बार वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको पहले तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए एंड सेकेंड वी मस्ट नो द एंडिंग पॉइंट और वी कैन से द टर्मिनेटिंग पॉइंट. ओके, तो यहाँ पे आपने डायग्राम में देखा है कि जो आपका ए होता है ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है एंड दिस बी इज द एंडिंग पॉइंट. और वेक्टर कैलकुलेट करने के लिए आपको कभी भी एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट करना है. सो हियर वी विल परफॉर्म एंडिंग पॉइंट माइनस स्टार्टिंग पॉइंट. सो दिस वेक्टर बिकम्स ए बी बार इज इक्वल टू बी बार माइनस ए बार. बी बार का वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट किया है. वेक्टर बी बार इज गिवन बाई ए एक्स बार minus 2ay bar plus 3az bar and the vector a bar is given by 2ax bar plus 3ay bar plus 5az bar. Okay, यहाँ पे आपको सिंपली इसको सब्ट्रैक्ट करना है. So this 1 minus 2 becomes minus 1 ax bar, then minus 2 minus of 3ay bar becomes minus of 5ay bar, then plus 3az bar minus 5az bar is equal to minus of 2az bar. Okay, so in this way we can calculate the value of this a b bar. जो आपको यहाँ पे वेक्टर बोला है कैलकुलेट करने के लिए, दिस इज द वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट. तो ये था हमारा आज का सेशन. आई होप आपको पसंद आया होगा. सो टुडे वी विल स्टॉप हियर विथ मोटिवेशनल कोट. टुडेज मोटिवेशनल कोट फॉर यू इज
push yourself because no one else is going to do it for you. Thank you for watching my videos. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you so much.